जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मैं हॉस्टल में था, तो आई थिंक कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई भी अगर कॉलेज में आ रहा है, स्कूल के बाद डायरेक्ट एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं वो डर रहता है सीनियर्स का कि क्या हो रहा है। ऑडिशंस जब सोसाइटीज़ के होते हैं तो एक रहता है कि सामने परफॉर्म करना है, वो जज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी डर रहता है कि सीनियर्स का डर रहता है। बट धीरे धीरे फिर थोड़ा टाइम होता है, इवेंट्स जब सोसाइटी में आप घुसते हो, फिर इंट्रैक्शन होती है सीनियर से, फिर ऐसे माहौल बन जाता है। Hi guys, welcome to Sketch School of Art and Creativity. Today's video is a very special video for all the students who are looking forward to start their journey of architecture. If you want to become a renowned and a good architect, the most integral part in this process would be the selection of a good architecture college. Searching for a good college for yourself is actually very difficult to do, and you will need to visit a lot of colleges, interact with a lot of architecture students to actually understand that what does a good college provide. I can understand that most of the students are not able to go through this process because you guys are not able to visit all the colleges from all over India or interact with a lot of architecture students. You don't have the contacts, you don't have that much of feasibility to visit all the colleges, and that is why Sketch School of Art and Creativity presents to you these episodes in which we would be interacting with a lot of students from architecture, and we will show you a lot of architecture colleges and college tours that will give you a great idea, and it will help you to compare between the colleges and decide a very good college for yourself. I hope that all of you will find these episodes really helpful. The only thing that I will request you to do is, in the comment section below, you have to type the name of the architecture college that you want to see from inside, basically a college tour, and from which state you are. So don't forget to mention that in the comment section below, because we will shortlist our future colleges from the comments which we had received in the comment section. So abhi ke abhi video ko pause karo and comment down below that from which college you want to see a college tour, so that you can save up your time and energy to visit the colleges, and you can see all the colleges and interact with a lot of students through this virtual platform. Now this video is featuring the students of School of Art and Architecture, Sushant University, which is in Gurgaon, Haryana. Sushant University is ranked the #1 private university in North India by India Today and Outlook for the year 2022. School of Art and Architecture Sushant University is one of the top private colleges that you can get through NATA or JBARC, and I think a lot of students, especially from North India, are aiming for Sushant University. There will be more episodes to this video in which we will talk to more and more people from the college, and also we will show you a college tour. So stay tuned in the video till the end, and also don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to not miss any of our videos which we are going to upload in future, because all our videos are going to be utterly important for the college admissions. Also guys, before jumping into the video, I would like to announce that Sketch School of Art and Creativity is organizing free demo classes for all the NATA and JEE/BARC aspirants. Now guys, I can't stress on this fact enough that how important it is to get very good marks in NATA and JEE/BARC examinations, also in your board examinations, so that you can get into a good college which will eventually help you to build a very strong portfolio for yourself, जिसके बेसिस पे आगे आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, एंड डेफिनेटली आप जो फर्म खोलते हो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, राइट। तो इस सक्सेसफुल होने की प्रिपरेशन जो है वो अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑफकोर्स टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बेस्ट प्रिपरेशन तो आपको पता ही है कहाँ पे होती है, SSAC इंस्टीट्यूट में। सो दैट इज़ वाई रजिस्टर राइट नाउ फॉर द फ्री डेमो क्लासेस, and just to register for the free demo classes you simply have to WhatsApp or call us on the number which is mentioned on the screen, which is 8882908615. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी ही थी. Now let's continue with our interesting and superb video. My name is Abhav Gupta and I am an artist and I am in architecture third year right now. Okay. And I am vice president of my college. Okay, and what about you? So hi, my name is Prerit Bansal.
and I'm currently in 4th year of architecture in Sushant School of Art and Architecture, and I'm the ex-president of this college. And if I talk about my hobbies, I like music, dancing, all these things. You have a lot of hobbies apart from like only drawing. Absolutely. Okay, so my first question starts from here. When you were in like school, starting from that time, 11th and 12th, from where did you hear about architecture? How did you decide that you want to take architecture as a career? कॉमर्स करने का मन नहीं था, नॉन मेडिकल ले तो रखी थी, तो फिर उसके बाद थोड़ा ड्राइंग वगैरह अच्छा ड्राइंग काफ़ी करता हूँ मैं, पोर्ट्रेट्स बनाता रहता हूँ और आर्ट में शुरू से था, तो उधर से थोड़ा आर्किटेक्चर का हुआ तो कर लिया जाए। घर वाले तो लगे थे पीछे, कह रहे थे बिजनेस पे लग जा। तो फिर पक्का था कि आर्किटेक्चर ही करना है? खुद का करने का मन था, कुछ देखा था कुछ पहले? नहीं, खुद से फ्रॉम स्क्रैच ही शुरू किया। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सो मेरे को ऑनेस्टली बीइंग ऑनेस्ट, मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब मेन स्ट्रीम, एज लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि मतलब नॉन मेडिकल लेते हैं। फिर उसके बाद मेरा IIT JEE क्रैक हुआ नहीं, सो उसके बाद फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मेरे फादर सिविल इंजीनियर हैं, सो इस बैकग्राउंड में वी हैव अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सो मेरा भी था कि सिविल इंजीनियरिंग करना है, बट उसमें अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा था, सो दैट्स वाई आर्किटेक्चर दूसरा ऑप्शन था जो कि इसी फील्ड से कनेक्टेड था, सो आई देन ऑप्टेड आर्किटेक्चर। You had interest in engineering or it was just like a family pressure? Actually में I liked studying physics, chemistry and maths. More like a technical person. Absolutely. And what about drawing and creativity? Not creativity as in I liked I was always a musician. मैं गिटार बजाता हूँ, I have my own band, I'm a DJ as well right now. So music में हमेशा से शौक था, and dance वगैरह all these co-curricular activities as well. But ऐसे drawing वगैरह आर्किटेक्चर मैंने उस टाइम ऐसा सोचा नहीं था, बट फिर जब धीरे धीरे मैं आर्किटेक्चर में आया देन इंटरेस्ट आने लगा। ड्राइंग सीखनी पड़ी कॉलेज में आके? ड्राइंग एज सच, ड्राइंग इसका एक आर्किटेक्चर में हमेशा मतलब एक मिसकंसेप्शन होता है कि ड्राइंग आनी ही चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है। अगर ड्राइंग नहीं भी आती है, यू कैन, आपको व्यूज़ अपने एक्सप्रेस करने हैं, यू कैन डू दैट डिजिटली एज वेल। सो अगर किसी के डिजिटल स्किल्स अच्छे हैं, ड्राइंग अगर दे कैन जस्ट इमेजिन, तो वो डिजिटली भी सेम चीज़ बना सकते हैं। राइट, सो इट्स लाइक नॉट अ मस्ट have skill. Absolutely. You must have given some sort of entrance examinations before coming into architecture. तो कुछ याद है that कैसा examinations थे, कितने score आया था? JEE नाटा दोनों ही दिए थे, तो एक नाटा में कम आए थे मेरे, अराउंड 125। कम तो नहीं थे। मेरे तो बहुत कम है फिर तो। नहीं मतलब दूसरे वाला का बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, पर वो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और JEE में मेरी 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी, पर वही क्योंकि 3000 कुछ रैंक था, तो उसमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिला नहीं, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज मिला नहीं, और सुशांत का प्राइवेट में अच्छा नाम था, तो इसीलिए कर लिया। राइट, एंड व्हाट अबाउट यू? एज आई सेड, मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को JEE 2 के पेपर के बारे में आइडिया भी नहीं था। सो उसके बाद जब मैंने सोचा आर्किटेक्चर करना, तब पता चला नाटा एग्ज़ाम है। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में फिर 118 या कुछ ऐसे नंबर आए थे। Okay, अच्छे ही थे फिर भी। ठीक है, मतलब चल गया काम। Right. ये तो कह रहे हैं 125 थे, पर फिर भी अच्छे नहीं थे, और कितने चाहिए? और दूसरे में 180 190 आ जाते बहुत आराम से, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर क्या करते? फिर सेप्ट्स जाने का मन था उस टाइम पे फिर। राइट, तो यार यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट पीपल थिंक दैट कॉलेज मैटर्स अ लॉट इन आर्किटेक्चर, यू नो, बिकॉज अभी तो यूर इन 3rd year 4th year, you might know the reality, but people think that if I go to a government college, if I go to some prestigious college after getting high marks, so what is the difference that you are in a private college, of course one of the best private colleges, but still if you were like in a government college maybe, so what is the difference? Is there any difference of placements, or what kind of a difference is there that people? डिफरेंस एज सच तो कुछ नहीं है, मतलब उस टाइम पे ये होता था क्योंकि साथ में सारे इंजीनियरिंग वाले थे कि इधर अच्छा मिला है, वो क्योंकि वो लोग कॉलेज देखते थे तो हमें भी हो गया, पर फिर जब उसके बाद कॉलेज नहीं मिला, मैंने फिर दिमाग में समझ लिया, मैं कहा वैसे आर्किटेक्चर ही करनी है, डिग्री है, मेरे को कौन सा बाद में जॉब अप्लाई करने के लिए चाहिए कि अच्छा मैंने SPA से किया तो मेरे को अच्छी मिल जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे तो मेरा पोर्टफोलियो देखना, तो मैं अपने मार्क्स की भी इतनी परवाह नहीं करता, काम अच्छा है, टीचर से बनती नहीं बनती, बहस पढ़ो।
कि चलो है पोर्टफोलियो पे अपने काम पे फोकस करो। तुम्हें क्या लगता है? जैसे अब आपने बताया कि पोर्टफोलियो मेन चीज़ होता है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट। तो वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी जो मेहनत पीछे लगती है, जो आपको जितने क्रेडिट्स आप लेते हो वो आपको एक गाइडेंस मिलती है, ऑब्वियसली वो कॉलेज में फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक आई एम लकी इनफ टू कम टू दिस कॉलेज, और मेरे को लगता है कि सुशांत में काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं जो कि अच्छी गाइडेंस देते हैं, क्रेडिट्स एंड ऑल, जो कि एक्चुअल में वर्किंग इस फील्ड में हैं। सो आई थिंक तो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं या फिर बोथ परमानेंट भी हैं एंड विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। ओके, सो गुड फैकल्टी आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन Absolutely. आर्किटेक्चर, बिकॉज आप सीखोगे कोई चीज़ तो उसी से जिसको आती है, वरना किससे सीखोगे? ऑल्सो एक्सपोजर भी एक चीज़ है, जैसे कॉलेज में फील्ड ट्रिप्स कितने हो रहे हैं, साइट विजिट्स कितने हो रहे हैं, तो जाके आपने पढ़ लिया थियोरेटिकल, बट जब तक प्रैक्टिकल आप देख नहीं लेते कि स्टील कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, आरसीसी कैसे हो रहा है, तब तक आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आता क्या चीज़ है। तो आई थिंक यहाँ पर साइट विजिट्स एंड ऑल भी काफ़ी होता है, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। And I think location also matters a lot in architecture. People, think about, especially parents, that हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे दिल्ली जैसे जगह पे पढ़ने. So they plan to send the person or student into some area which is underdeveloped maybe, और वहाँ पे buildings ही नहीं है. तो I think that is also a huge thing. Like आप बताओ how frequently you go for like site visits and stuff. Like not from the college only. Maybe आप खुद भी जाते होगे. ऐसा नहीं कि आप खुद कोई building नहीं देखते होगे. तो how frequently you see the buildings? खुद से वैसे बिल्डिंग्स तो आसपास की देखते हैं, पर साइट विजिट भी नहीं। दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं रोज। देख लिया, अरे ये कॉलेज खत्म हुआ, चलो बाद फोन कहाँ पे है, चल चले गई। मतलब देखते तो हो, लाइक आई थिंक ना वो एक नेचर बन जाता है दैट आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू सी द स्पेस अराउंड यू, क्योंकि अब पता है उस चीज़ के बारे में, तो एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि इसने ये चीज़ कैसे बनाई है, कुछ अगर डिफरेंट किया तो कैसे किया है, ताकि उसको हम सीख के अपने आगे अपने डिज़ाइंस में या प्रैक्टिकली उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट। एंड यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम लोग एंटर करने वाले होते हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में आए नहीं है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जब हम आने वाले होते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ माइंड सेट विच वी हैव, लाइक फ्रेंड्स होंगे नहीं होंगे, सीनियर, तो जब तुम एक्चुअल में आए तो तुम डरे हुए तो ज़रूर होगे, एंड यू नो सीनियर्स होंगे एंड टीचर्स होंगे एंड बहुत बड़ा ग्रुप होगा। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू केम इनटू द कॉलेज, अबाउट द कॉलेज? मैं तो नहीं डरता, नहीं मैं नहीं डरता किसी से। पता था रैगिंग होनी है तो मज़े से दे दो, बाद में उन्हीं सीनियर्स ने हेल्प करनी है। इंटरेक्शन कहते हैं उसको। इंटरेक्शन, ये साथ में बैठे। Like he's from third year and he's from fourth year, but you seem to have like a very chill. जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मैं हॉस्टल में था, तो आई थिंक कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई भी अगर कॉलेज में आ रहा है, स्कूल के बाद डायरेक्ट एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं वो डर रहता है सीनियर्स का कि क्या हो रहा है। ऑडिशंस जब सोसाइटीज़ के होते हैं तो एक रहता है कि सामने परफॉर्म करना है, वो जज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी डर रहता है कि सीनियर्स का डर रहता है। बट धीरे धीरे फिर थोड़ा टाइम होता है, इवेंट्स जब सोसाइटी में आप घुसते हो, फिर इंट्रैक्शन होती है सीनियर से, फिर ऐसे माहौल बन जाता है। Hey, I hope that you're enjoying the video till now. Sorry for the little bit of interruption, but this is a very important announcement for all of you that Sketch School of Art and Creativity would be providing scholarships to the students who would take admission in Sushant University. You can avail scholarships from Sushant University on the basis of your NATA/JEE plus boards marks, but additional scholarships will also be provided by Sketch School of Art and Creativity to you guys. Like even if you are 1% interested to take admission in Sushant University, kindly fill the form which I have provided in the description box below. If you will not fill the form, then you will not be eligible to avail any scholarships by Sketch School of Art and Creativity. तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है उसको फिल कर दो। सोसाइटी की भी इन्होंने ली थी, मेरी इंटरेक्शन डांस सोसाइटी की, मैं दे नहीं रहा था, कहते तू दे के जाएगा, तू जाएगा नहीं यहाँ से। So after all, it's just like you become friends after a period of time and then everything is sorted. तो इतनी डरने वाली कोई बात नहीं होती। And how do you think is the environment of the college in general? Like हर college का environment इतना अच्छा नहीं था। Some colleges are really strict and they don't have any kind of activities, any kind of societies. I've seen colleges जिसमें कोई माहौल ही नहीं है except from कि पढ़ाई करो और घर जाओ।
तो what do you think about that in सुशांत यूनिवर्सिटी? सुशांत में कल्चर तो है, क्योंकि हर सेमेस्टर कुछ सर्टन चीज़ें तो ऑलरेडी फिक्स रखते ही हैं कि ये होएंगी और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा से हो जाती हैं, क्योंकि कुछ हम अपने कॉलेज लेवल पे भी कराते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे तो फेस्ट वगैरह वो सब चलते ही हैं, तो कॉलेज लेवल पे एक अलग से भी रहता है हमारा. So I think that's what you want, like society अच्छी हो. And what about strictness? College strict है या lenient? So if I add to Abhav's point, जैसे आपने you asked about college culture and all that, तो हमारा कॉलेज डिफरेंट आर्किटेक्चर का जैसे एक मेन कंपटीशन होता है विच इज़ कॉल्ड नासा. सो हम नासा में भी पार्ट लेते हैं, परफॉर्म करते हैं. एंड zonal NASA, which is annual NASA and zonal NASA, we won the zonal NASA trophy. तो we have that evidence कि हम कितनी मेहनत करते हैं co-curricular में, म्यूज़िक में भी हमारा आया, फैशन में भी, डांस में भी. तो we work a lot for co-curricular and all these activities other than architecture. I think that's really important because in architecture you will have to talk to a lot of people, not only like who is your boss maybe or who is your client, but also to the laborers, also to a lot of people. I think connections are really important and अच्छा culture होना society में ना, exposure, I think that's a very main exposure से भी ज़्यादा कि तुम सामने वाले से interact कैसे करते हो, उसको understand कैसे करते हो. अगर वो एक कम्युनिकेशन गैप भी है तो, पर अगर पर्सनालिटी के हिसाब से वो चीज़ मैच कर जाती है कि उनको समझ आ जाता है कि हाँ इसके पास जाके बात कर सकते हो, ये काम करवा देगा, तो वो भी बहुत एक यूज़फुल रहती है चीज़. जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती है, दो चीज़ें मेन है कि एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, डिफरेंट लोगों से बात करते हो, कॉम्पिटिशन्स में जाते हो. एंड सेकंड जो मोनोटनी है आपकी रोज़ आर्किटेक्चर करने का, इतना स्ट्रेस रहता है. वी नो, मैं भी अभी 2 रात से सोया नहीं हूँ. सो अभी आज हमारी जूरी है. सो वो एक स्ट्रेस बस्टर मतलब रिलीज़ करता है जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं. You had a mindset about architecture, it's more like creative plus technical, but now you've come in the first year. अभी क्या सिनेरियो है फर्स्ट ईयर में? क्या लगा पढ़ाई के बारे में कि पता चला कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, या व्हाट इज़ दिस, व्हाट आई एम स्टडिंग राइट नाउ इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थॉट. तो मे बी कुछ ऐसा थिंकिंग प्रोसेस हो, तो कैसा लगा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट ईयर? ऑनलाइन में था मैंने तो फिर हाँ, तुम्हारा तो फर्स्ट ईयर मेरा तो कोविड बस में सुबह बस एक बार अटेंडेंस हुई, उसके बाद सो जाते थे. रात में कुछ पूल वूल खेल रहे, कुछ कर रहे, काम चल रहा है, और ड्राइव पे सबमिट होता था, सबका काम रीनेम करके सबमिट कर दिया. तो फर्स्ट ईयर में तो चलो फर्स्ट ईयर तो बहुत आराम से चल गया. जैसे मैंने अटेंड किया था फर्स्ट ईयर में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको आर्किटेक्चर की फील देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्पेस की एलिमेंट्स क्या क्या होती हैं, वॉल, विंडोज़, ओपनिंग्स, तो डिफरेंट आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ जस्ट कि फर्स्ट ईयर बेसिकली फील दे रहे हैं आपको आर्किटेक्चर की. एग्जैक्टली कोर में नहीं घुस रहे, बट जस्ट द फील. राइट. सो फर्स्ट ईयर इज़ लाइक काइंड ऑफ सिंपल. तो लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर मेरा लाइक जो फर्स्ट ईयर में है, अगर आप उनसे पूछो तो दे विल बी लाइक कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट. सो इसका एक रीज़न है. Right. जैसे अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ग्रेजुअली हर चीज़ के लिए बेसिकली अभी आर्किटेक्चर में मेन मुश्किल चीज़ यही है कि हार्ड वर्क, काम बहुत करना पड़ता है, रोज़ रात को जागना पड़ता है, ऑल दैट, जो कि लोग डरते हैं इस चीज़ से. एंड काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं आर्किटेक्चर इस रीज़न से. तो धीरे धीरे स्ट्रेस को ना आपको पुश फॉरवर्ड करते हैं. मेंटल आपकी जो एबिलिटी है उसको पुश करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इतना एक रात जागना है, फिर सेकंड में थोड़ा और जागना है. तो कैसे टाइम मैनेज करना है मेन. उसके अलावा थोड़ी आदत भी हो जाती है कि अब करना है, वो खुद से ही होता है कि चलो ये इतने टाइम में हो जाएगा, अभी छोड़ दो इसको. एकदम आखिरी में भी देख सकते हैं, एक हो जाता है अंदर से कि इनको कैसे वो सिचुएशन कब हैंडल करनी है. तो जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह में ऐसा नहीं होता दैट आप पूरी रात जग रहे हो, तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट इन आर्किटेक्चर यू हैव टू लाइक वर्क एक्स्ट्रा हार्ड? क्योंकि आर्किटेक्चर में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा, आर्किटेक्चर में प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, उसमें थ्योरी करनी है, तो वो तो तुम रट्टा मार के एक रात पहले हो जाएगा. पर आर्किटेक्चर में अगर एक पूरा सेमेस्टर का एक काम चल रहा है, जैसे डिज़ाइन है, तो उसके अगर आप डिलीवरेबल्स देखोगे एक रात पहले अगर आपने देख लिया, आप सोचोगे ये नहीं हो सकता. पर अगर वो सेमेस्टर से ही चल रहा है तो वो इतना आसानी से वो काम हो जाता है और एंड रिज़ल्ट इतना अच्छा निकल के आता है कि अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलती है. सामने वाला जो देखता है वो भी कहता है कि ये क्या बना के लाया है.
वो चीज़ इंजीनियरिंग में नहीं है ना, वो तो थ्योरी पेपर लिखा है, अब वो उसमें तो टीचर बोले क्या लिख दिया ये। राइट, और थ्योरी में तो आप कुछ कट शॉर्ट कर सकते हो, बट इन आर्किटेक्चर यू हैव टू लाइक प्रेजेंट समथिंग रियल, मे बी अ मॉडल और मे बी सम शीट्स। और वो भी रहता है कि सामने ज्यूरर्स होते हैं तो कि उनको कैसे प्रेजेंट करना है, उनको क्या चीज़ उस टाइम पे पसंद आ रही है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, या कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को ऐसे एक्सप्लेन करना है, वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। काफ़ी लोगों को अब बना तो देते हैं पर एक्सप्लेन करना नहीं आता। का भी एक रीज़न है, जैसे अब आपने बोला कि इंजीनियरिंग में इतना क्यों नहीं पढ़ना पड़ता। इंजीनियरिंग का मेन ये होता है कि आपके पास बुक है, उसमें फैक्ट्स हैं, आपने पढ़ा, उसको याद समझा, उसको आपने रेप्लिकेट किया। आर्किटेक्चर एक प्रोसेस है, डिज़ाइनिंग एक प्रोसेस है इन विच यू हैव बीन गिवन अ स्पेस, या जो भी आपको डिज़ाइन प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें आपने पहला एक आइटरेशन बनाया, उसको फिर आपने प्रेजेंट किया, उसमें फैकल्टी बताएंगे नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ह्यूमन के इमोशंस को भी ऐड करो, बहुत सारे लेयर्स होती हैं जो कि ऐड करनी पड़ती हैं। तो एक बारी किया, फिर उसके बाद तो प्रोसेस है, रोज़ रोज़ आइटरेशंस करनी पड़ती है, तब जाके वी कम अप टू द फाइनल थिंग। तो इसलिए इसमें इतना मेहनत करनी पड़ती है। तो दैट इज़ वाई कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक रात पढ़ लिया और ख़त्म। क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी अगर आप जाओगे तो क्लाइंट के पास तुम एक आइडिया ले गए, अब क्लाइंट ने कुछ और बोला, फिर तुमने उस पर वर्क करना है, फिर उसने कुछ और बोला, तो वो चलता रहता है। ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली। नाउ लेट्स कम टू लिटिल बिट यू नो द फ्यूचर, कि अभी तो कॉलेज की समझ लिया, फैकल्टी का समझ लिया, फ़न भी बहुत होता है, हार्ड वर्क भी बहुत होता है इन आर्किटेक्चर, बट व्हेन यू कम टू 4th ईयर, राइट, what is the difference which you have found, like आपको तो मे बी ना पता हो बिकॉज अभी आप पता है आपको भी, ठीक है, आप भी बताना कि क्या डिफरेंस है 4th और 5th ईयर में, लास्ट ईयर्स में क्या डिफरेंस होता है स्टडीज़ वाइज। लास्ट ईयर में डिफरेंस बेसिकली ये रहता है, 3rd ईयर तक हमारे को एक, अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे को प्रैक्टिकलिटी इतनी मैटर नहीं करती, हमारे को उस टाइम पे हमारा कि हमारे को प्रोसेसिंग, हमारा थॉट प्रोसेस ज़्यादा इन्हांस करते हैं उस टाइम पे। पर जब 4th ईयर में आते हैं तो अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइनिंग, उसमें तुम बिना प्रैक्टिकल, अगर वो चीज़ है ही नहीं तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर 5th ईयर में तो पहले 6 महीने है ही इंटर्नशिप, वहाँ पे तुम्हारे को फेस करना है रियल वर्ल्ड को, उसके बाद थीसिस है, फिर उसके बाद जॉब करनी है, या अगर खुद की फर्म एकदम से तो खोल नहीं पाएगा कोई। राइट, और जैसे हर कॉलेज का करिकुलम होता है, अब आपने बताया कि 3rd ईयर तक इमेजिनरी डिज़ाइन प्रोसेस रहता है कि हवा में बातें हो रही हैं, तुम फ्लाइंग फ्लाइंग बिल्डिंग्स बना रहे हो, कुछ भी मैकेनिकल बिल्डिंग्स, डायनेमिक बिल्डिंग्स बना रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड कि आप आगे के डिज़ाइनर्स हो, सिटी डिज़ाइनर्स, बिल्डिंग डिज़ाइनर्स हो, क्योंकि आगे 2050 में दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स, अडेप्टेबल बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट है। अब 4th ईयर में क्या होता है कि आपको रियल लाइफ का टच देते हैं कि अर्बन डिज़ाइनिंग, जैसे अभी करेंटली वी आर वर्किंग ऑन लाजपत नगर साइड, कि रियल लाइफ ह्यूमन इमोशंस की वहाँ पर लोग रहते हैं, जाके बात करो लोगों से, क्या वो प्रॉब्लम फेस करें, शॉपकीपर से, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से आपको बात करनी है। तो वो रियल लाइफ एक टच आता है 4th ईयर में। एंड 5th ईयर इज़ कम्प्लीटली और इंटर्नशिप पीरियड, जो कि आप देन फाइनली जो कि आपने 4th ईयर में पढ़ा है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो आपने डिज़ाइन प्रोसेस, फिर वो आप फील्ड में जाके करते हो। एंड देन 5th ईयर लास्ट का 10th सेमेस्टर इज थीसिस। So my last question to you is that how much or where do you see yourself in the next 5 years? Like my question is towards कि आप जॉब करने की सोच रहे हो और मास्टर्स करने की सोच रहे हो मे बी, या फिर you want to open your own firm. What do you think, or what is your end goal basically? My own firm with some side business. Okay, that's great. So you want to like have an architecture, core architecture में जाना है? कोर आर्किटेक्चर में, और आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही कुछ, क्योंकि जैसे किसी का कुछ डिज़ाइन किया तो ये हमारे से ले लो, That is the you know वो तो रहता ही है ना। तो और जैसे अभी एग्जीबिशंस वगैरह में भी जाते तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें पता चलती हैं कि अब ये शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है, तो अभी उन चीज़ों में मार्केट कम है, उसको कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। राइट, तो उसको साथ साथ में देख के और अपना आर्किटेक्चर जो चलता रहेगा, तो वैसा एक प्रॉपर इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि घर वालों का एक बिजनेस सेट है, अगर नहीं होता तो वो तो लास्ट ऑप्शन है ही है,
पर अगर उनके बिना ही मैं काफ़ी अच्छा कर पाता हूँ तो उनका बिजनेस भी बाद में एक्सपैंड हो सकता है। Right, great. And what about you? एज आई सेड कि मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना खुद ऑब्वियसली उसको एक्सपैंड करूँ विद आफ्टर गेनिंग सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड सो आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years इन माई ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एंड शाम को म्यूज़िक में, प्रॉब्ली रात को क्लब में डीजे है। Right. तो ये क्वेश्चन भी बहुत होता है कि आप रात भर जगते हो तो म्यूजिक कब करते हो फिर? ये मतलब जैसे वीकेंड्स हो गया, अब 5 बजे आने के बाद 7-8 बजे जैसे मैं जिम भी रेगुलरली जाता हूँ, तो फिटनेस का भी मेरा रहता है, तो बैलेंस रहता है हर चीज़। या बस तभी रात को बीच जाना वीकडे में इनका कॉल आ जाएगा, आज रात को चल रहे हैं मेरी गिग है। तो आई थिंक कि सब हो जाता है, इट्स नॉट लाइक कि कुछ नहीं कर सकते अपना, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, हो जाएगा। हो जाएगा, दैट्स इट। सो कुछ और बताना है कोई? ठीक है, आई थिंक इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आई लव टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच।